very much. Hi guys, I am Manvi and welcome to my very first YouTube vlog. So, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ of content creation and how did the idea of creating my own YouTube video came into my mind. I was pursuing MBA in marketing specialization from a dash university. During my MBA journey was a very life-changing journey of my life, and it was a whole different experience. So, कुछ महीने पहले when I was pursuing my MBA journey, I basically did an internship with a company which I'm not very happy about. It is a very big and very good company, but the experience was very bad. But that experience actually made me realize that how much I was into content creation and how content creation can be one of the things जिसमें मैं बहुत ही interest मेरा डाल सकती हूँ. So I have been a very average student since the very start of my life, and I was never too much into studies or too much into पढ़ाई kind of. I always wanted to do fashion designing. Fashion का F भी नहीं है मेरे में, मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को पहली बात तो. बट हाँ, मुझे करना था. ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. But then after that internship I realized that yes, content creation can be something that I can get into. But मुझ में start करने की वो हिम्मत नहीं थी because I never thought that I would be that confident to start my own YouTube channel or to start posting reels, because I had followers of around 1,000 at that time as well. So a glimpse, I have a lot of friends. I would not say friends, but I would say acquaintances. I have a lot of acquaintances. I have a lot of connections, a lot of network, a lot of things. Okay, I have a lot of people. मुझे ऐसा लगा था कि if I start posting reels out of nowhere, बहुत सारे जजमेंट्स आएंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे फॉलोअर्स मुझे अनफॉलो कर देंगे थिंकिंग कि ये क्या कर रही है, क्या बकवास है ये वो. बट वन डे with the help of one of my friend, he's a very good friend of mine, he said that you should get into content creation, you should start making reels now. And it took just one reel for me. I posted one reel, मैंने एक रील पोस्ट करी, मैंने दूसरी रील पोस्ट करी, मैंने तीसरी रील पोस्ट करी. तब तक मुझे कोई कुछ नहीं बोल रहा था गाइस, nobody. मैं मेस में जाती थी, खाना खाती थी, आ जाती थी, there was nobody saying anything to me. But the moment they realized मेरी चौथी या पांचवी रील आने के बाद कि she is getting into content creation and she is now going to shit post everything on Instagram, that's when the real problem started. So all my friends started saying अरे तू तो content creator बन गया, अरे तू तो a lot of shit. Okay, now that was somewhere embarrassing because none of them ever said that you're doing too good or you should get into this. It was only my roommate who was the one who supported me for my content creation. She was like, you should get into it and you should do it, you should be consistent, तुम्हें करना चाहिए, because it just takes a few reels to go viral, and when you start earning is next level. She's a Gujarati. Her name is Kanishka Patel. So she did that for me. And जब उसने मेरे को ये सब बोला, it was a green signal. नहीं, मुझे करना चाहिए, मैं लोगों का सुन के I can't just stop doing it. Now 6 months passed. मेरे जो दूसरे फॉलोअर्स थे या मेरे जो दूसरे फ्रेंड्स थे who also got into content creation were doing so good, extravagant. मतलब उनके literally within a week or so they were at 100k or 110k, then 400k, then million में उनके व्यूज़ जाने लग गए थे. And I was like, what the fuck are you doing, bro? Where are you in all of these things? But again, one of my friend,
ही टोल्ड मी यार सबका कंटेंट क्रिएशन का जर्नी बहुत डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू what you do. Okay, अब एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ ग्रोइंग कंटेंट क्रिएटर, मेरी जर्नी बहुत अलग रही होगी उन लोगों से, एंड दे आर डूइंग सो गुड इन लाइफ. आई एम हैप्पी अबाउट इट, बट द ओनली थिंग दैट बॉर्डर मी वॉज मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं वहाँ क्यों नहीं पहुँच पा रही हूँ जहाँ ये लोग पहुँचे. बट ठीक है यार, हर बच्चा अलग होता है, हर लोगों का एल्गोरिदम अलग होता है, हर लोगों का स्पेस अलग होता है. My pace was different, and the best part is I recently reached 5.9 million on one reel, just one reel, nothing changed. मुझे ऐसा लगता था कि मेरी एक रील वायरल होगी और मेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता guys. Nobody even noticed that I'm at 5.9 million at the moment. But yes, हुआ था ऐसा. One reel reached and that give me next level confidence कि यार तू अब कर सकती है, ये कर सकते हो, वो कर सकते हैं, a lot of things. Then मुझे collaborations आने लग गए, मुझे PRs आने लग गए. I'm very thankful for to those brands कि उन लोगों ने मुझे एक opportunity दी. They believed in me that I can create a good content for their company. But it was all barter, okay? At the moment when I'm still getting collaborations and all of them are in barter. So अभी just one thing, ऐसा लगता है कि भाई वीडियो ही तो बना रहे हैं, एडिट ही तो कर रहे हैं, पोस्ट ही तो कर रहे हैं, इतना क्या उखाड़ लिया, इतना क्या लग रहा है. नहीं गाइस, वीडियो शूट करना एक बार में टेक नहीं आता. यू शूट फॉर वन डायलॉग एटलीस्ट 10 वीडियोज़ 20 वीडियोज़. उसके बाद जब तुम एडिट करने बैठते हो, उन 20 वीडियोज़ में से यू शॉर्टलिस्ट विच वन इज़ द बेस्ट एंड देन यू पुट इट देयर. ओके, एंड तुम उसके लिए मेकअप करते हो बिकॉज तुम्हारा अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है. और ये ऐसे पिंपल्स जो है ना, ये जो दाग धब्बे वो दिखना, तो भाई तुम स्किन केयर ब्रांड के लिए लिटरली तुम शूट कर रहे हो. एंड मैं स्किन केयर ब्रांड के लिए कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ दिस प्रोडक्ट लिटरली चेंज माई स्किन टेक्सचर, और यहाँ पे दाग धब्बे दिख रहे हैं. मेक्स नो सेंस, इट्स नॉट रिलेटेबल. सो आई विल हैव टू यू नो इनडायरेक्टली आई हैव टू डू मेकअप, आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. वो होने के बाद तुम ब्रांड्स को भेजते हो, ब्रांड ने अप्रूव किया तो ठीक है. अगर वो बोलते हैं कि नहीं तुम्हें ये शॉट चेंज करना है, ब्रो यू नीड टू डू द सेम मेकअप अगेन, एंड दैट इज़ होल अनदर लेवल शिट. मुझ जैसी लड़की जिसको मेकअप का एम भी नहीं आता, मुझे आईलाइनर अगर लगाना होता था ना, मैं अपनी रूममेट को बोलती थी कि प्लीज़ मुझे आईलाइनर लगा के दो, मुझे आईलाइनर लगाना नहीं आता. मैं मेकअप के नाम पे क्या करती हूँ मैं बताती हूँ. यहाँ पे मैं लगाती हूँ कंसीलर, ठीक है, यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ फाउंडेशन, लिपस्टिक लगा लेती हूँ, मस्कारा लगा लेती हूँ, बस दैट्स इट. आईलाइनर मुझसे अच्छे से लगता नहीं है, तो मुझे नहीं आता है मेकअप करना. तो मैंने अगर बाय मिस्टेक मेरे से एक बार अच्छा मेकअप हो गया, मैंने उस पर वीडियो शूट कर लिया, एंड उसके बाद मेरे को ब्रांड बोलती कि नहीं यू नीड टू रीशूट दिस इज़ नॉट गोइंग अप विद द वीडियो, मेरे से सेम मेकअप नहीं हो पाएगा. बट आई नीड टू डू इट. सो दैट इज़ होल अनदर लेवल का शिट कि भाई तुमको वापस से सेम मेकअप करना है. सो द पॉजिटिव पार्ट ऑफ the social media is that you have a lot of money. You'll earn a lot once you go viral, once people like watching you and everything. ठीक है, but the negative part is that people don't want to see natural you. अगर तुमने अपना natural चेहरा दिखा दिया, I have seen a lot of videos जिसमें या reels जिसमें लड़कियाँ literally naturally आ रही है कैमरा के सामने, दे आर क्रिएटिंग वीडियोज़, दे डोंट केयर. आई लव देयर कॉन्फिडेंस एंड आई स्टैंड अप फॉर दोज लेडीज़ एवरी डे एंड आई रिस्पेक्ट देम. जब मैं उनके कमेंट सेक्शन में जाती हूँ, बहुत अच्छा किया, प्लीज़ डोंट डू इट अगेन. तुम रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, तुम खुद तो बना नहीं रहे हो, ठीक है, तुम रील्स स्क्रॉल कर पा रहे हो या तुम वीडियोस देख पा रहे हो क्योंकि सामने वाला बंदा वीडियोस बना रहा है. इफ़ दोज क्रिएटर्स स्टॉप मेकिंग रील्स और दोज क्रिएटर्स स्टॉप मेकिंग वीडियोस फॉर योर एंटरटेनमेंट, यू विल ब्लडी स्लीप एट नाइट ऑन टाइम एंड यू वोंट डू एनीथिंग. तुम एक कॉर्नर में बैठोगे और तुम डिप्रेशन में चले जाओगे कि मेरे पास कुछ करने को नहीं है, ठीक है. और तुम फिर उन क्रिएटर्स के रील्स पे जाके लिटरली तुम में ऑडेसिटी भी तुम कमेंट कर रहे हो, इतने गंदे गंदे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हो. अगर तुम्हें रील पसंद नहीं है, जस्ट स्क्रॉल डाउन, राइट. यू डोंट हैव टू कमेंट शिट ऑन देयर पोस्ट. जस्ट थोड़ा सा दिस थिंग इज दैट नाउ आई वांट टू गेट इनटू पेड कोलैबोरेशंस.
But the problem is that brands don't want to give opportunities to the small creators, and I don't understand it why. तुम बड़े क्रिएटर्स को आई गेट इट, तुम बड़े क्रिएटर्स को कोलैबोरेशन दोगे, तुम उन्हें पैसे दोगे, वो तुम्हारे लिए वो बनाएंगे, रील्स बनाएंगे, एवरीथिंग, तुम्हारी सेल्स बढ़ेगी। तुम दूसरे जो भी स्मॉल क्रिएटर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं दोगे ग्रो करने के लिए, तो वो ग्रो कैसे करेंगे? मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, तुम बड़े क्रिएटर्स को अगर एक रील का 1 लाख दे रहे हो या 2 लाख दे रहे हो, तो तुम जो स्मॉल क्रिएटर्स हैं, you can at least pay 1,000 rupees for each reel that they create, and जो वो efforts डालते हैं उस reel में, उसके लिए you can give them at least 1,000 rupees. Then I realized कि if I want to get into this field, I need a constant content creation का whole knowledge and everything, and I need a constant income. Obviously मेरे पास income नहीं आएगा, तो I cannot start creating. That's when it came into my mind that I should get into YouTube, because YouTube India has been very open, very friendly to all the creators, वो चाहे बड़े creators हो, छोटे creators हो, YouTubers हो, सबके लिए it has been very open and friendly. YouTube has given opportunities to a lot of people, and they have grown, they have made ऐसे बड़े बड़े घर बना लिए हैं बड़े बड़े शहरों में. आई हैव सीन दोज ब्लॉग्स एंड एवरीथिंग. सो दैट्स व्हेन इट केम इनटू माय माइंड दैट आई शुड स्टार्ट क्रिएटिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब. अब लॉन्ग वीडियोज़ बनाने के लिए आपको बहुत ही मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, बिकॉज इट इज़ समथिंग जो आप डेली बेसिस पे करते हो, एंड यू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग and everything. And I am very sure that my family at this stage of my creation journey is not comfortable with me showing everything that is going on in my personal life, obviously. मुझे बहुत ही mentally prepare होना पड़ा. मैं सोचती रही कि बहुत दिनों तक कि मैं क्या वीडियो बनाऊंगी, what video should I put on YouTube, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. जेमिनाई कर रही हूँ, ChatGPT कर रही हूँ. एक टाइम के लिए ChatGPT ने मुझे ये भी बोला था कि अब इससे ज़्यादा मैं आइडियाज़ नहीं दे सकता तुम्हें. सो येस, बट बहुत सोचा मैंने. इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ टू क्रिएट अ यूट्यूब वीडियो, बट इट वॉज टुडे इटसेल्फ दैट आई रियलाइज्ड कि यार मेरे को कोई कंटेंट ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है. I have a lot of things to rant about, I have a lot of things to talk about, I have a lot of things to share with you guys. आपको क्या देखना पसंद है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, और आप मुझे बता पाओगे कि मुझे किस टाइप की यूट्यूब वीडियोस बनाने चाहिए या किस टाइप की वीडियोस हैं जो आपको इंटरेस्ट करते हैं. अगर आप मुझे बताओगे तो मैं उस नीश में घुस सकती हूँ. दैट्स व्हाट केम इनटू माय माइंड, एंड तब मैंने सोचा कि नहीं यार, अब मुझे यूट्यूब वीडियोज़ बनाना शुरू करना चाहिए. बट या, दिस इज़ इट. Now I will be posting my first YouTube video. I am very sure that I'm going to be very consistent on YouTube. Even if I get 2 views or 2 subscribers, मैं उन 2 subscribers के लिए post करूँगी, but I will post every day. Next series would be my MBA experience. तब तक के लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप ये वीडियो सुन रहे हो till the end, I have just one request. What do you guys want to see? What kind of videos do you guys want me to make, and how was this video is what I want. Also, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, please do like, subscribe and comment on this video, because आप लोगों का एक लाइक, एक व्यू, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब बटन पे जो क्लिक है वो is very important for small creators like us. So yeah guys, thank you so much, and yes, that is it for today's video, and we'll meet in the next video. Bye.